Good morning, class 11th. How are you all? I hope you all are well. So, as we were discussing about the chapter number 2, units and measurements, and we have discussed how to find the dimensions. Or first of all, we discussed about the physical quantities. So, we have discussed physical quantities. They are of two types. One is fundamental quantities and other is derived quantities. Okay. So fundamental quantities में we have done 7 fundamental quantities which are mass, length, time, temperature, electric current, luminous intensity and amount of substance that we have done. So today we will discuss about the characteristics of dimensions. That as we have discussed that the dimension of mass is m, dimension of length is l, dimension of time is t. So today we will discuss what are the characteristics of the dimension, कि हम dimension क्यों पढ़ रहे हैं, उनके क्या क्या characteristics हैं, वो हमें कहाँ कहाँ पर यूज़फुल हो सकती हैं. तो यही characteristic कहलाते हैं, जैसे कि मैंने बोर्ड पर लिख रखा है. As you all can see, एक dimension do not depends on the system of units. Dimension सिस्टम के यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करती हैं, चाहे आप कोई सा भी सिस्टम ले लें, वेदर इट इज़ MKS सिस्टम और CGS और SI और FPS, कोई सा भी सिस्टम ऑफ यूनिट ले लें, उस सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर डायमेंशन सेम होंगी, चाहे यूनिट कोई सी भी हो, चाहे यूनिट केजी हो, वेदर इट इज़ ग्राम, वेदर इट इज़ केजी, वेदर इट इज़ पाउंड. हर एक केस के अंदर मास की यूनिट m ही रहेगी. हर एक सिस्टम के अंदर मास की यूनिट कैपिटल M ही रहेगी, लेंथ की यूनिट कैपिटल L ही रहेगी और टाइम की यूनिट कैपिटल T ही रहेगी. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ दैट. एंड द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज क्वांटिटीज़ विद सिमिलर डायमेंशंस कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर. अगर कोई भी दो ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायमेंशन सेम है, तो उन क्वांटिटीज़ को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. there are some very easy examples are there by which I can explain this term. For example, अगर हमारे पास एनर्जी है, whether it is a kinetic energy or the potential energy, kinetic energy के potential energy U, so we can write half mv square and the potential energy will be mgh. तो kinetic energy and potential energy have the same units and same dimensions. तो हमने यही बताया कि सिमिलर क्वांटिटीज़ जो होंगी या क्वांटिटी विद सिमिलर डायमेंशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं. ठीक है, तो इट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल. सो द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, डायमेंशंस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़. डायमेंशंस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स पता हैं, सो वी कैन ईजिली फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको पता है, if we know about the velocity is displacement upon time and the unit of displacement is meter and time is second. So by the units of this quantity we can find out the dimensions of it. How? देखिए, मीटर की जो डायमेंशन है वो होती है L और सेकेंड की जो डायमेंशन है विच इज़ कैपिटल T, तो इसको हम लिख सकते हैं LT -1. So with the help of units we can find out the dimensions of a physical quantity. The next characteristic is two different quantities can have the same dimension. दो अलग अलग अगर हमारे पास quantities हैं, उनकी dimensions same हो सकती हैं. अब ये बात कैसे होगी, तो इसका भी मेरे पास एक एग्जाम्पल है. इसका एग्जाम्पल बच्चों ये है कि अगर हम देखें टॉर्क के बारे में, टॉर्क is R cross F, और there is one more quantity which is work done. Work done is force into displacement. तो बच्चों देखिए, R की जो यूनिट है वो होती है L and the unit of force is mLT -2. So the final answer is mL2 T -2. And for the next quantity which is work done, force is mLT -2 and the dimension is L and the displacement is L, so it will become mL2 T -2. So you can easily see that
that two different quantities. Torque is different from the work done. They have different definitions, although they have the same dimensions, ml2t minus 2 and ml2t minus 2. Okay, so kindly write down these characteristics in your notebook so that it will help you. Okay, so hopefully you have wrote down the characteristics of dimension. So now we will study the dimension analysis, or we will see what are the uses of dimensional analysis, कि dimension analysis के क्या इस्तेमाल हैं या उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो बच्चों डायमेंशनल फार्मूलाज को हम यूज़ कर सकते हैं. दे कैन बी यूज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, कि अगर हमने कोई भी इक्वेशन लिखी है वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट. ओके, सो मैं इसके लिए एक इक्वेशन लेता हूँ बहुत सिंपल सी. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, विच इज़ v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. तो हमारे पास ये एक इक्वेशन है बच्चों, जिसमें राइट हैंड साइड में वेलोसिटी है और लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी और राइट हैंड साइड में वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम का प्रोडक्ट है. अगर हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, तो हम कैसे करेक्ट करेंगे? बाय यूजिंग द डायमेंशनल फार्मूलाज और डायमेंशनल एनालिसिस. ओके, सो लेट्स चेक. सो सबसे पहले हम निकालेंगे व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास? वेलोसिटी है या स्पीड कह लें आप इसको. सो व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी? As we have done in the class, that the dimension of velocity is lt minus 1. तो बच्चों इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आ रही है lt minus 1. आओ चेक करते हैं व्हाट विल बी द राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड है बच्चों u प्लस ए टी, और अगर हमें u प्लस ए टी की डायमेंशन निकालनी है तो सबसे पहले हम इनको के अलग अलग डायमेंशन निकालेंगे, u का डायमेंशन प्लस ए टी का डायमेंशन. सो दिस इज़ अगेन स्पीड और वेलोसिटी, तो इसकी डायमेंशन भी क्या होगी बच्चों? एल टी माइनस 1. ऑल राइट. और यहाँ पर आता है एक्सेलरेशन इनटू टाइम. तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है बच्चों एल टी माइनस 2, और टाइम की डायमेंशन होती है अगेन टी. अगर हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे सो विल गेट एल टी माइनस 1. So you all can see this, that the dimension of left hand side is lt minus 1, and dimension of left hand side there are two terms. One of the term is velocity and second of the term is acceleration into time. So both are having the same dimensions, which means this formula is correct. तो यही फॉर्मूले करेक्टनेस हमको चेक करनी है बच्चों. इसके लिए आप चाहें तो यू कैन आई कैन गिव यू वन क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क. सो यू हैव टू चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस फार्मूला. तो आप बेटा ये इस वाले फार्मूले की करेक्टनेस चेक करें. वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और इसके अलावा आप ये वाला फार्मूला भी चेक कर सकते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ओके क्लास, सो काइंडली राइट डाउन दिस क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क. So the second use of this dimensional formula, which is you can convert the unit of physical quantity from one system to another system. ये कैसे करना है बच्चों? कि हमारे पास अगर कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी किसी, अब हमने कई सारे सिस्टम पढ़ रखे हैं लाइक MKS सिस्टम, CGS, FPS और SI सिस्टम. तो मेनली हमारा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये आपको जानना है कि MKS या तो CGS में बदलने को आएगा बच्चों, या CGS से MKS में बदलने को आएगा. सो बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन चेंज वन क्वांटिटी या यूनिट ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम MKS टू CGS और CGS टू MKS. ओके, सो दिस इज़ वेरी सिंपल हाउ टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास हमको निकालना है फोर्स MKS में फोर्स की जो यूनिट है विच इज़ न्यूटन.
ओके। और हमें इसको चेंज करना है CGS में, तो CGS में इसकी यूनिट है फॉर एग्जांपल विच इज़ डाइन, ठीक है। इसी तरह से एक और भी है हमारे पास एग्जांपल, वो एग्जांपल है आपका एनर्जी का। एनर्जी का जो एनर्जी की जो MKS में होती है बच्चों वो है जूल, और जो CGS में है वो है इसकी अर्ग। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो अभी तो बच्चों इसको इतना लिख लीजिए। तो सो द लास्ट वन इज डिड्यूस द रिलेशन कनेक्टिंग द फिजिकल क्वांटिटीज़। तो हम इसके अंदर एक काम और ये भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास हमें पता हो कि दो क्वांटिटीज़ में रिलेशन क्या है, फॉर एग्जांपल वेदर टू क्वांटिटीज़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ओके, तो हम उनमें भी रिलेशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमको पता है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स और टू ऑब्जेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम, या आर पे मान लीजिए कि फोर्स जो है डिपेंड करता है आर पर और फोर्स डिपेंड करता है मासेस पर, ठीक है। या फिर इस तरह का हमें कोई और इन्फॉर्मेशन बता दी जाए कि किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड करता है उसकी लेंथ पर, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ और इट डिपेंड्स ऑन जी, ऑलराइट, जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हमें सिर्फ इतना पता है ना कि टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसके थ्रू बच्चों हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, व्हाट शुड बी द करेक्ट रिलेशन बिटवीन देम। अगर हम ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो कुछ ये फॉर्मूला इस तरह से आता है K√L/G, ओके। सो दीज आर द यूसेज ऑफ डायमेंशनल फार्मूलाज। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वॉट एवर आई हैव डन इन द क्लासरूम, और अगर आप कोई भी डाउट है तो काइंडली आस्क मी इन द जूम मीटिंग। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। हो गई? हाँ, बंद करो।